Hello everyone, very good evening to all of you and welcome you all at my channel or at my classes Learn English with Smith. So let's start our today's session. Okay, today we are going to discuss pronoun or I'm going to share my screen with you all. Is it audible? My audio is audible or not? Hello? Guys, you just confirm me. One of the students, please confirm me. Okay, fine. Yes. Okay, students, let's proceed our class. Don't worry. I think screen is visible to everyone. Yes. Okay, so come to pronoun. Students, a pronoun is something which act as a substituting word. Substituting word क्यों लिखा है मैंने उसका रीजन समझिएगा. Substitute हम किसे बोलते हैं? Like आपको सर्दी आपको लगी हुई है, सर्दी का टाइम है और आपको डेली कॉफी पीने की हैबिट है, राइट? बट आपकी एक दिन कॉफी खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हो? मम्मा को कहते हो मम्मा कुछ गरम ला दीजिएगा, तो मम्मा आपको चाय का कप ला के देती है. क्लियर है? ओके, तो आपका कहीं ना कहीं उस कॉफी की जगह आपने चाय लिया तो आपका काम चल गया. बात समझ रहे हैं? तो इस चाय ने किसको रिप्लेस कर दिया? कॉफी को. तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं. सब्स्टिट्यूट समझ में आ गया सबको कि pronoun is a substitute of noun. It's a substituting word. Okay, as well as you can say pronoun is a word which is used to replace a noun. Okay, it's a replacing word. Clear to everyone? Please give me a thumbs up. Yes ma'am. Okay, that's fine. Let's move to the next thing. What I have told you, I also written here. Pronoun is a word which is used in place of a noun. That means pronoun एक ऐसा शब्द है जो कि एक noun को replace करता है. जब भी आप एक pronoun को use करेंगे तो same चीज के लिए एक noun नहीं रखेंगे. समझ में आ गया? दोनों एक साथ में नहीं आएंगे. Okay, except relative pronoun. Okay, चलो देखते हैं कुछ examples. Here we have given the first example. Mukul did not come as he was not invited. In this sentence, you have given a noun and the name of the person is Mukul. Clear? And Mukul is a noun because it's a name of person. Right? Mukul didn't come. Mukul nahi aaya as he was not invited. क्योंकि वो invited नहीं था. So students, here we have used he in place of Mukul. Clear है? तो he को जो आपने प्लेस किया है यहाँ पे वो किसके प्लेसमेंट पे किया है? मुकुल के रेफरेंस में किया है. समझ में आ गया इतना? And here we have given a word as is used for reason. Okay, यहाँ पे as reason बताने का काम कर रहा है. इतना समझ में आ गया सबको? चलो come to the next sentence. Shraddha failed because श्रद्धा फेल हो गई because she did not work hard. Okay, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, उसने मेहनत नहीं की, हार्ड वर्क नहीं किया, इसलिए वो फेल हो गई. तो यहाँ पे जो श्रद्धा है दिस इज नाउन. ओके, एंड हियर शी वी हैव यूज्ड फॉर श्रद्धा, तो शी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. समझ में आ गया सबको? तो प्रोनाउन क्या है यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द लेडी हु रोट दिस नॉवेल इज कम हियर टुडे. ओके, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोनाउन चेंज है. द लेडी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेडी. ओके, अब इस सेंटेंस पे आ जाओ. जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे कोमा है. जस्ट इमेजिन है नहीं, बट आपको इमेजिन करना है सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए. Who wrote this novel is coming here today. ओके, जिसने इस नॉवेल को लिखा. तो आपको यहाँ पे ये जो who है इसका साउंड क्या आ रहा है? जिसने. और जिसने बात कर रहा है एक पर्सन की. क्लियर है? और पर्सन की बात कर रहा है तो किसकी बात की जा रही है? लेडी की. तो लेडी के प्लेसमेंट पे हमने क्या यूज किया है? who प्लेस किया है. So who is used here as a pronoun. Yes or no? Please give me a thumbs up if these three statements are clear to everyone. Okay. Okay. That's great, guys. So let's move to the next slide. Fine. Now we have 8 types of pronouns. Sometimes you have given 9 types of pronouns in books. Okay, but doesn't matter. जो possessive pronoun है वो personal pronoun का ही हिस्सा है. Okay.
So let's come to the first one. Personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative, distributive, indefinite, reflexive and reciprocal. Students, आपके एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि ये जो प्रोनाउंस हैं क्या क्या नेम्स हैं कितने टाइप्स हैं, तो हम इसका डिटेल डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ओके, कि किस तरह से आपका एरर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो सिंपली हम एरर डिटेक्शन को फॉलो करते हुए आपके फिल इन द ब्लैंक्स को फॉलो करते हुए ग्रामेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, first of all we have given personal pronoun. Okay, personal pronoun is basically used to make a substitute of a person or a thing or a thing. समझ में आ गया सबको? अल्टीमेटली पर्सनल है, दैट मीन्स पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, राइट। चलिए, पर्सनल प्रोनाउंस का इतना समझ में आ गया कहाँ यूज करते हैं, पर्सन और थिंग के लिए, ओके। अब पर्सनल प्रोनाउन में अगर बात की जाए तो आप जब स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आप इंग्लिश में बनाते हैं, तो यूजुअली हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एंड हियर ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। ऑब्जेक्ट हमेशा ही सेंटेंस में ऑप्शनल होता है, ओके। रिक्वायर्ड है तो रखेंगे, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहेगा, ओके। सो कम टू द फर्स्ट वन। जब भी आप एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में किसी को भी रखते हो, तो एज अ सब्जेक्ट आपकी दो ही चीजें ग्रामर में हो सकती हैं, ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि आपके स्टेटमेंट में जब भी आप इंग्लिश का कोई भी स्टेटमेंट में कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तो आपके सब्जेक्ट के प्लेसमेंट पे आपकी दो ही चीजें आ सकती हैं ग्रामर में, या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। क्लियर? ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन। देखिएगा, आप इस टेबल पे आ जाइएगा प्लीज। यहाँ से first of all, this column, this one is for subjective case and this column is for objective case. Clear है? अब subjective और objective cases क्या है, एक बार वो भी देख लेते हैं। Whenever you are talking about a person who performs an action, okay, जब भी हम किसी ऐसे person की बात करते हैं जो action को perform कर रहा है, like मैंने बोला कि I am writing a book, so who is writing a book? I, okay, तो मैं लिख रही हूँ, that means काम को perform किसके द्वारा किया जा रहा है? मेरे द्वारा, तो मैं वहां पे क्या हुई? सब्जेक्ट। क्लियर है सबको? ओके, एंड व्हाट आई एम डूइंग? राइटिंग, ओके, तो यहाँ पे राइटिंग क्या हो गया आपका? वर्ब। क्लियर? एंड व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट? व्हाट आई एम राइटिंग, मैं लिख क्या रही हूँ? अ बुक, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया सबको कि व्हाट सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट्स वर्ब, ओके। नाउ कम टू दीज केसेस, ओके। whenever you place a pronoun as a subject, जब भी आप किसी pronoun को as a subject मतलब सब्जेक्टिव प्लेसमेंट पे रखेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ओके। क्या होगा वो? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ओके। एंड इफ यू आर यूजिंग अ प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट, ओके, सो यू ऑलवेज से दिस इज एन ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। इतना समझ में आ गया सबको? देखते हैं प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ओके। these all are subjective case pronouns. And if I come to me, us, you, him, her, it and they, okay, all these, sorry students, this is them, okay, all these are objective case pronouns. I think this is clear to everyone. समझ में आ गया होगा hopefully सबको, okay। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो आपका क्वेश्चन बनेगा पॉजेसिव केस से। यूजुअली आपके पॉजेसिव केस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड हियर यू हैव गिवन पॉजेसिव केस, ओके। पॉजेसिव का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? पॉजेसिव मीन्स टू शो अ राइट, मतलब कि अधिकार। क्लियर है? लाइक मैंने कहा कि दिस इज माय पेन, व्हाट आई हैव सेड, दिस इज माय पेन, मतलब कि इस पेन पे अधिकार किसका है? मेरा है। तो जब भी आप मेरा, तुम्हारा, उसका इस तरह से बातें करोगे, तो आप किसको यूज करोगे? वहां पे पॉजेसिव केसेस को यूज करेंगे। बट वी हैव अ डाउट बिटवीन पॉजेसिव केसेस। I have given two columns. First one is for adjective and second one is for pronouns. That means we have given possessive adjectives. ये सब क्या है? Possessive adjectives हैं, और ये सब क्या है? Possessive pronouns हैं। क्या डिफरेंस है अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अभी के लिए आप इतना समझिएगा कि सब्जेक्टिव केस होता है जो सब्जेक्ट के प्लेसमेंट पे आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट पे आएगा। चलो, अब इस केस को मैं थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कस करती हूँ, अभी आप इधर आ जाइएगा। चलिए देखो, ये जो है दोनों, जब भी आप पर्सन्स की बात करते हो, पर्सन्स की बात समझ रहे हैं कि एक कॉन्वर्सेशन में कितने तरह के लोग हो सकते हैं। दैट मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर इन अ कॉन्वर्सेशन।
लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, नाउ आवर कन्वर्सेशन इज टू वे कम्युनिकेशन, ओके, टू वे कम्युनिकेशन है, आप हैं और मैं हूँ, ओके, बट यहाँ पे तो टू टाइप्स के ही पर्सन हुए ना, मैं हूँ दैट मीन्स मैं बोलने वाली हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो स्पीकर कौन है यहाँ पे, मैं हूँ, ओके। यूजुअली पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों को समझिएगा। फर्स्ट पर्सन किसे आप कहेंगे, जो हमेशा स्पीकर होगा, तो स्पीकर को क्या बोला जाएगा, फर्स्ट पर्सन, क्लियर है, बोलने वाला हमेशा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। लाइक मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो अभी के लिए मैं फर्स्ट हूँ, और आप सुनने वाले हैं, दैट मीन्स जो लिसनर है, ओके, लिसनर इज ऑलवेज विल बी सेकंड पर्सन, तो आप सब लोग क्या हुए, सेकंड पर्सन, इतना समझ में आ गया है सबको। बट जब आप बोलेंगे तो आप लोग क्या बन जाएंगे, फर्स्ट पर्सन, और उस टाइम पे मैं सुनूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, सेकंड पर्सन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। नाउ कम टू थर्ड पर्सन। स्टूडेंट्स, हम और आप बात कर रहे हैं, क्लियर है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, बट हम किन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स सीजीएल टीयर 1 में सेलेक्ट हो गए हैं, ओके, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो सीजीएल टीयर 1 में सेलेक्ट हो गए हैं, या फिर जिनका बैंक पीओ या बैंक क्लर्क प्री निकल गया है, हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो वो सभी स्टूडेंट्स, ना तो मैं हूँ ना आप हैं, हम किसी और की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, व्हाटएवर बी देयर विल बी थर्ड पर्सन, चाहे वो कोई वस्तु है, लाइक मैं और आप इसकी बात कर रहे हैं, इस पेन की, ओके, तो ये पेन ना तो मैं हूं ना आप हैं, तो हम दोनों के अलावा जो भी हुआ उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। आई थिंक सबको समझ में आ गया है, टू होम वी आर टॉकिंग, ओके, जिसके बारे में फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन बात करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। तो ये सभी के सभी कैसे हैं, थर्ड। चलो देखते हैं इस टेबल में कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है। स्टूडेंट्स, जब मैंने कहा आई दैट मीन्स जो बोलने वाला है, यस, बट मैं इंडिविजुअली अपनी बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल स्पीकर हूँ, तो मैं क्या, कौन सी पर्सन हुई, फर्स्ट पर्सन, ओके। बट जब आप लोग बोलेंगे, आप मुझसे बात करेंगे, आप लोग अपनी डाउट्स रेज करेंगे, तो आप क्या हुए, आप सब लोग बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपने आप को मैं नहीं कहेंगे, आप अपने आप को क्या कहेंगे, हम, ओके, हम सभी को डाउट है, ओके, मैम हम सभी को ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, ओके, तो आप सब मिलके क्या हुए, वी, ओके। बट दोनों ही साइड देखा जाए तो है तो स्पीकर ही, ओके, तो स्पीकर की जब भी बात की जाएगी तो स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन रहेगा, सो आई एंड वी बोथ आर फर्स्ट पर्सन। समझ में आ गया सबको यहाँ तक। नेक्स्ट कम टू यू। जब भी आप यू की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यू मीन्स होता है तुम, ओके, तुम, और तुम आप हमेशा किसको बोलते हो, आपके सामने जो होता है, जिससे आप टॉक कर रहे हो, ओके, जिससे आप कॉन्वर्सेट कर रहे हो, दैट इज यू, ओके, तो हमेशा ही तुम कौन सा पर्सन होगा, सेकंड पर्सन। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट वी हैव गिवन सम वर्ड्स, ही, शी, इट और दे। ना तो आप ही हैं, ना आप शी हैं, ना मैं शी और ही हूँ, ना ही आप इट हैं, ना ही आप दे हैं, ओके, तो ये सभी क्या हुए, फर्स्ट और सेकंड के अलावा जो भी बचा उसे हम कौन सा पर्सन कहेंगे, थर्ड पर्सन। आई थिंक सबको समझ में आ गया है यहाँ, यस, क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थिंग पे। तो ये दोनों फर्स्ट हैं, दिस वन इज सेकंड एंड ऑल दीज आर थर्ड पर्सन, यस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। लाइक मैंने कहा शी इज टीचिंग यू, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट आई हैव, आई एम टीचिंग ही, okay. Next one is them are taught by me, okay. चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेंटेंस में आपके पास है शी इज टीचिंग यू। इन दिस सेंटेंस वी हैव गिवन कि वो मुझे पढ़ा रही, वो तुम्हें पढ़ा रही है, दैट मीन्स एक्ट करने वाला कौन हुआ, शी। तो चेक करो, शी एक्ट करने वाला है, दैट मीन्स सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट हमेशा ही किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। Always remember subject is always will be in subjective case, okay, and object is always will be in objective case. And one more thing students, subjective case is also known as nominative case. आपको बुक्स में nominative case लिखा हुआ मिलेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सब्जेक्टिव केस को ही नाम दिया जाता है किसका, नॉमिनेटिव केस का। तो आपने देखा कि शी यहाँ सब्जेक्ट है, तो चेक करो कि सब्जेक्टिव केस वाली लाइन में है, बिल्कुल है, दैट मींस दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ शी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं, इज टीचिंग यू, ओके।
इन केस ऑफ वो पढ़ा रही है, तुम्हें पढ़ा रही है, तो यू हमारा किस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। चेक कीजिएगा कि यू ऑब्जेक्टिव केस में बिल्कुल है। अब माइट भी आपको डाउट होगा कि मैम यू तो यहाँ भी है, ओके तो यू जो है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस में बिल्कुल सेम होता है स्टूडेंट्स, तो यू जब भी आएगा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, डोंट वरी, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम टीचिंग ही, ओके सो पढ़ाने वाला कौन है, आई है, तो बिल्कुल गिवन है सब्जेक्टिव केस में। एक्शन हो किस पे रहा है, इस पर्सन पे, कि मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, तो उसे दैट मींस कोई पर्सन है, ओके तो ही नहीं होना चाहिए बिकॉज वी डोंट हैव गिवन ही, होना क्या चाहिए हिम, बिकॉज ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। क्लियर है सबको यहाँ तक। एंड द लास्ट सेंटेंस वी हैव गिवन, देम आर टॉट बाय मी, वो मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ, ये, ओके बट सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ओके और सब्जेक्ट अगर हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा तो हम यहाँ पे them का यूज नहीं करेंगे बिकॉज them इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, सो ऑलवेज प्लेस हियर they. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है सबको तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप एवरीवन, वेरी गुड। That's great guys, let's move to the next, okay चलिए अब हम यहाँ आते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, दिस पार्ट पोजेसिव केस। तो पोजेशन में आपको इतना समझ में आ गया कि पोजेशन होता क्या है। पोजेशन दैट मींस आपका जिस चीज पे अधिकार हो उस पे आप पोजीशन दिखाएंगे, दैट मींस जिस चीज पे आपको अधिकार दिखाया जाए, ओके लाइक दिस सेल फोन इज माइन, ओके अगर ये सेल फोन मेरा है तो मैं क्या यूज करूंगी, इधर आई नीड टू यूज माइन और आई नीड टू यूज माइन, ओके क्योंकि ये मेरा है, ये आपका नहीं है, ओके अब देखते हैं इन केसेस को थोड़ा सा, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, कम हियर, यस ओके यहाँ आ जाइएगा स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट को देखना पहले, उसके बाद हम इन पे चलेंगे, ओके पहले स्टेटमेंट समझिएगा। दिस इज माय सेल फोन, light has gone, don't worry, I'm visible to you, even slide is also visible to you, okay and the next sentence that you have is this cell phone is my cell phone, and the next sentence you have given is this cell phone is mine cell phone. Now everybody come to your chat box, okay अपने चैट सेक्शन पे आ जाइएगा सब लोग और मुझे बताइएगा किन सेंटेंसेस में मिस्टेक क्या है, किस तरह से सेंटेंसेस करेक्ट होने चाहिए, जल्दी से आइएगा। सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एवरी सेंटेंस, just do it fast, might be any of the sentences is correct, first one correct, okay I'm waiting for your answers guys, okay this cell phone is mine, okay first is correct, do answers fast guys, mine के बाद cell phone use नहीं होगा, okay cell phone is mine, okay second and third में mine होगा। Where is Arshpreet, Taranpreet, why you guys are not answering, okay स्नेहा मैम आपके सेलफोन की आवाज आ रही है, सो प्लीज आप ईयरफोन्स यूज कीजिएगा, आप हेडफोन्स यूज करके देखिए। ओके गाइस, वेरी गुड एवरीवन, दैट्स फाइन। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके देखिएगा सेंटेंस फर्स्ट में, दिस इज माय सेल फोन। स्टूडेंट्स जो टेबल आपको मैंने अभी बताया उस टेबल में ध्यान से देखिएगा सब लोग, उस टेबल में क्या था, एक जगह आपने एडजेक्टिव देखा और एक जगह आपने क्या देखा, प्रोनाउन देखा, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में आप सबको बहुत अच्छे से पता है। देखिएगा मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखा है दिस इज माय सेल फोन, इफ आई राइट दिस सेंटेंस टिल हियर, यहाँ तक अगर मैं इस सेंटेंस को लिखती, अगर हमने सेलफोन का जस्ट इमेजिन की यूज नहीं किया होता एंड सेंटेंस आपको बस यहीं तक होता दिस इज माय, सो दिस सेंटेंस वुड बी रॉन्ग बिकॉज दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है तो ये रॉन्ग होगा। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपने एक नाउन को प्लेस किया, आपने किसको प्लेस किया, एक नाउन को, वॉट एवर यू कैन हियर, ओके आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो, दिस इज माय सेल फोन, दिस इज माय बुक, दिस इज माय लैपटॉप, कुछ भी आप रख सकते हो, बट you have to place any noun here, it is mandatory to place any noun just after my, okay तो जब भी आप my, our, your, his, her, their,
ओके जब भी इन वर्ड्स का यूज करोगे तो आपको हमेशा उनके बाद किसी नाउन को प्लेस करना मैंडेटरी हो जाता है। ये बात समझ में आई सबको? क्यों? क्योंकि उनके बिना सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट रहेगा। ओके अब एक चीज को समझिएगा। ओके यहाँ पे एक वर्ड है लाइक माय, और माय के बाद आपने एक नाउन को प्लेस किया, तो ये जो माय आपने प्लेस किया ये किसके बारे में बात कर रहा है? इस सेलफोन के बारे में। यस ओके और एनी वर्ड विच टॉक्स अबाउट ए नाउन, कोई भी वर्ड जो क्वालिफाई करता है एक नाउन को या किसी भी नाउन के बारे में बात करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम एडजेक्टिव। सो ऑलवेज रिमेंबर माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, all these are adjectives। ये सभी क्या हैं? adjectives हैं, ध्यान रखना। ओके चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। दिस सेलफोन इज माई सेलफोन। ओके दिस सेलफोन इज माई सेलफोन। प्रोनाउन की डेफिनेशन में ही हमने एक चीज पढ़ा कि एक नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। बात समझ में आ गई? नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए आप किसको यूज करते हैं? प्रोनाउन को। तो जब भी और क्यों यूज किया जाता है? सो दैट कि एक ही नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, इसीलिए तो नाउन के रिप्लेसमेंट में हमने प्रोनाउन रखा। तो देखिएगा इस स्टेटमेंट पे एक मिस्टेक तो ये हो गई कि दो सेलफोन आ ही नहीं सकते हैं। रीजन बिहाइंड इज क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या होना चाहिए? दिस सेलफोन इज। अब माई सेलफोन सेंस वाइज देखा जाए तो करेक्ट है कि ये सेलफोन मेरा सेलफोन नहीं है, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो यू नीड टू प्लेस एनी प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ माई सेलफोन। तो आपको यहाँ पे माई सेलफोन के प्लेसमेंट पे किसको रखना पड़ेगा? किसी प्रोनाउन को, एंड दैट विल बी माइन। ओके तो यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा? माई सेलफोन, सॉरी दिस सेलफोन इज माइन। ये सेलफोन मेरा है। तो समझ में आ गया क्या डिफरेंस है माई और माइन में? ओके वेयर वी नीड टू यूज माइन एंड वेयर वी नीड टू यूज माई। क्लियर है एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस सेलफोन इज माइन सेलफोन। अभी तो आपने कहा कि दिस सेलफोन इज माइन, और जब माइन को आपने यूज किया था तो किसके प्लेसमेंट में किया था? माई सेलफोन के प्लेसमेंट में। क्लियर है सबको? तो इस वर्ड के अंदर ऑलरेडी एक नाउन और एक पॉजेसिव एडजेक्टिव गिवन है, सो यू डोंट नीड टू यूज एनी प्रोनाउन, सॉरी एनी नाउन अगेन। ओके समझ में आ गया है? अगर आप ऐसा यूज करोगे तो माई सेलफोन सेलफोन, इसका मीनिंग ये निकलेगा, और जो कि रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस कहाँ तक करेक्ट है? दिस सेलफोन इज माइन, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। तो जब भी आपको पॉजेसिव प्रोनाउंस दिए जाते हैं लाइक दिस वन, ऑल दीज आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। ओके तो पॉजेसिव प्रोनाउंस जब भी दिए जाएंगे तो उनके बाद आप कभी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज दीज वर्ड्स हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड और ऑलरेडी composed of a possessive adjective as well as a noun। कुछ समझ में आया यहाँ तक? लाइक माई प्लस नाउन करोगे तो माइन बनेगा, आर प्लस नाउन करोगे तो आर्स बनेगा, योर प्लस नाउन करेंगे तो योर्स बनेगा, हिज प्लस नाउन इज हिज बनेगा। ओके हिज में सेम रहता है। 10 मिनट्स बाद आई थिंक अपनी जो यस स्नेहा वर्मा यू कैन आस्क योर डाउट। हेलो स्नेहा, हेलो Sneha Verma, where are you? Okay, just wait a minute. She has written something. Ma'am, please repeat. Okay, I'm going to repeat again. देखिएगा अपने सेंटेंसेस पे वापस आइएगा। यहाँ पे आपने मैंने कहा क्या कहा? जब भी आप माइन वर्ड को यूज करोगे ना बेटा, माइन को, आर्स को, योर्स को, हिज को, ये सब किससे बने हैं? माई प्लस नाउन से माइन बना, आर प्लस नाउन से आर्स बना। ओके क्योंकि आपने माई प्लस सेलफोन रखा तो उसको रिप्लेस करके हमने क्या किया? माइन किया ना। दैट मीन्स माइन के अंदर ऑलरेडी ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। माइन के अंदर ऑलरेडी एक नाउन है, और ऑलरेडी एक नाउन है तो दोबारा से आप लोग माइन के बाद क्या नहीं करोगे? सेलफोन नहीं लिखोगे, क्योंकि सेलफोन उसके मीनिंग में ऑलरेडी आ चुका है। समझ में आया आप? स्नेहा वर्मा प्लीज आंसर करें। स्टूडेंट्स इफ यू गॉट क्लियर दीज थिंग्स सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अगर आप सबको ये समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप दो और आगे बढ़ो। दैट्स ग्रेट गाइस। अब आइएगा इधर, इन दोनों सेंटेंसेस पे आइएगा प्लीज। नाउ यू हैव गिवन दीज 2 सेंटेंसेस और प्लीज ट्राई टू करेक्ट दीज 2 सेंटेंसेस। नीचे 2 सेंटेंसेस आपको गिवन है स्क्रीन पे, और उन दोनों सेंटेंसेस को प्लीज करेक्ट करें जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फास्ट फास्ट आंसर्स करना है आपको, राइट? ओके दैट्स ग्रेट, ग्रेट गाइस।
ग्रेट। ओके, सेकंड वन को करेक्ट करें जल्दी से, सेकंड वन, वेरी गुड। स्नेहा वर्मा, जस्ट लुक इट अगेन for the second sentence. Arshpreet, okay, that's great guys, you are doing great. Okay, fine. Everyone got the thing कि everyone got the concept कि क्या था basically ये possessive adjective और possessive noun। देखिएगा sentence पे आते हैं हम लोग। These books are mine, ये बुक मेरी हैं। तो आप ऐसा नहीं लिखोगे ना कि these books are mine books, बिल्कुल गलत है। These books are my book, ये भी गलत होगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो आपको करना ही है, रिपीट आप कर नहीं सकते, इसलिए हमने क्या प्लेस किया, these books are mine। बट अगर ये बुक्स मेरी हैं तो वो वाली तुम्हारी हैं, तो आपने क्या कहा, दोज आर योर बुक्स। तो बुक्स की बात तो पहले ही हो चुकी है ना, अल्टीमेटली बुक्स की बात तो आप कर चुके हो कि बुक्स की ही बात कर रहे हैं। ओके, जब भी कॉन्ट्रास्ट में सेंटेंस होता है तो अल्टीमेटली या फिर कंपैरिजन में होता है तो हम दो सेम चीजों की बात करते हैं। तो आपने कहा वो वाली क्या, बुक्स। ओके, तो दोज आर योर बुक्स नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, दोज आर योर्स। तो यहां से बुक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होगा, द चिल्ड्रन हैव डन देयर्स होमवर्क नहीं होगा बच्चे, देयर्स हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ओके, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ ही नहीं सकता। बट प्रॉब्लम इज, अगर हम केवल देयर्स पे सेंटेंस को खत्म कर देंगे तो सेंटेंस को एंड अगर कर दिया आपने देयर्स पे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है ना, क्योंकि होमवर्क पहले नहीं गिवन है। तो आपको होमवर्क बताना जरूरी है। अगर ये नाउन है तो देयर शुड बी एन एडजेक्टिव, तो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो एडजेक्टिव में आप किसको रिप्लेस करोगे, देयर्स को देयर से रिप्लेस करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी द चिल्ड्रन हैव डन देयर होमवर्क। समझ में आया, देखिएगा इधर। ओके, देयर्स के बाद तो नाउन को प्लेस कर ही नहीं सकते ना, दिस वुड बी रॉन्ग बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ प्रोनाउन। if these two sentences are correct, so clear, so please give me a thumbs up and move to the second next sentence। समझ आ गया सबको, चलिए, गुड गुड गुड। ओके ग्रेट गाइज, अब आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं, प्लीज ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस करेक्ट एंड गिव मी आंसर्स फास्ट। ओके, नाउ यू हैव 5 सेंटेंसेस राइट। जल्दी जल्दी से इनको करेक्ट करें, कोशिश करें कि पांचों सेंटेंसेस के आंसर्स आप साथ में लिखें फटाफट से। वेरी गुड, फास्ट आंसर्स करो, that's great। स्नेहा वर्मा, अमित, everyone is correct, that means you are getting concepts, good। okay, first sentence I think सबका करेक्ट है, that's fine students, there should be your bike, yours bike नहीं होगा, good। come to the next one please। we won the final match and we were awarded for him। good, very good Radhika। Sneha Verma, okay, okay, yes guys, you all are correct। we won the final match, that means हम फाइनल मैच जीत गए, and we were awarded, और हमें अवार्ड किया गया, किसके लिए, जो मैच जीते हो उसके लिए अवार्ड किया गया है ना आपको, अवार्ड उसी के लिए आपको पुरस्कृत किया गया है, तो हिम के लिए थोड़ी किया जा रहा है, अवार्डेड फॉर it is what, match। okay, let's move to the next sentence, this is very easy। Lenovo, Rita, your it, okay Rita, that's good, you're correct। yes guys, everyone is correct, there should be they। okay, not them। let's move to the next sentence because it's a subject in this sentence ना, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम कर रहा है जाने का, तो अंडरस्टूड है कि वो सब्जेक्टिव केस में होगा, एंड सब्जेक्टिव केस इज दे एंड देम इज ऑब्जेक्टिव केस, राइट। Ravi bought a book and he bought them for 200 rupees। bought it, okay, very good, everyone is correct, good, शाबाश। okay, Ravi bought a book, रवि ने एक किताब खरीदी, and he bought, अब ही बोट क्या, उसी किताब के बारे में, उस बुक के बारे में बात हो रही है, तो दैम कैसे करेंगे आप लोग, बुक इज नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के लिए आप क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, इट इज यूज्ड फॉर अ नॉन लिविंग थिंग, ये नॉन लिविंग थिंग है, ओके, समझ जाइएगा। एनिमल, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब जो बेबी होता है ना,
उसके लिए भी आप इट यूज करेंगे। एंड प्लांट्स, बर्ड्स एंड ऑल, इन सब के लिए भी आप इट का यूज करेंगे। इट के बाकी यूसेस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फिफ्थ वन में द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम, वो आदमी जो अभी अभी इस रूम में एंटर हुआ है, इज माइन फ्रेंड नहीं हो सकता ना बच्चे, इट शुड बी माई फ्रेंड। एग्जैक्टली ज्योति, एग्जैक्टली स्नेहा, दैट्स ग्रेट। करणप्रीत, दैट्स फाइन। ओके, तो आपको फ्रेंड तो रखना पड़ेगा क्योंकि आपको बताना ही चाह रहा है ना, फर्स्ट टाइम नाउन का यूज हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप फ्रेंड को हटा के माइन कर दोगे। ओके, तो देयर शुड बी माई फ्रेंड। ओके, करेक्ट है, माइन को यहां से रिमूव करके माई से रिप्लेस कर दीजिएगा। I think these 5 sentences are clear to everyone. If yes, so please give me a thumbs up so that we'll move to the next slide. Now we have only 2 minutes. After that, you just reconnect the same meeting, okay, with the same ID. उसके बाद आपको same ID के साथ same meeting को connect करना है। आपकी meeting मैं वापस से restart करूंगी अभी, because 40 minutes I think हो चुके हैं। चलिए, वन डाउट, ज्योति गंगवाल, यस यू कैन आस्क योर डाउट, जस्ट अनम्यूट योर ऑडियो एंड आस्क योर डाउट। मैम जैसे आपने सेकंड में इट यूज किया ना, वो एक मिनट रिपीट कर दोगे? जैसे मैंने इट्स लिख दिया था तो कंफ्यूजन हो रहा था वो। ओके बेटा, इट इसलिए यूज किया है बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट विनिंग अ फाइनल मैच। ओके, वी वन द फाइनल मैच, कि हम किसको जीत गए, फाइनल मैच को, एंड वी वर अवॉर्डेड, और हमें अवार्ड दिया गया, दैट मीन्स हमें उसके लिए पुरस्कृत किया गया। किसके लिए बताओ खुद से, किसके लिए पुरस्कृत किया गया है? मैम वो मैच के लिए इट मतलब सिंगुलर था इसलिए इट यूज किया, अदरवाइज इट्स यूज करते। एग्जैक्टली, सिंगुलर ओके ओके, इसलिए आपने इट यूज किया है बिकॉज आपको दिया है ना, यस मैम, गॉट इट। मैचेस नहीं लिखा है बेटा। Do subscribe this video and don't forget to press the bell button and do like and share